How does it feel, Aditya? Feels great, and also very shocked to see the kind of talent that we've seen in the past half an hour, 40 minutes. Honestly, मैंने expect नहीं किया था, लेकिन you know, they've sung so beautifully, and this is, like you said, it's just a trailer. This is what we'll be experiencing for the next 13 weeks. और सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे वापस to be seeing all these familiar faces, और बहुत काफ़ी टाइम गुजर गया, एक्चुअली जितना सोचा था उससे ज़्यादा समय गुजर गया है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है. वेरी एक्साइटेड, वेरी थ्रिल्ड एंड वेरी कॉन्फिडेंट नाउ आफ्टर सीइंग द किड्स. इनको सुनकर, इनको देखकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ. So on to our first judge. He's somebody that everybody loves. इनकी स्माइल से और इनके गाने के अंदाज से, इनके संगीत से हम सब वाकिफ हैं. Somebody that, you know, everybody just loves to watch on television and hear when they listen to music. The captain of the boys team, Shan. Good evening all of you. और मेरे लिए वापस ZTV में आना जैसे कि वापस घर आना आफ्टर अ लॉन्ग गैप. सारेगामा से सारेगामा हुआ जब मैं उसे होस्ट करना शुरू किया in 2002, तो almost 13 साल हो गए. It was 2002 February and now it's almost the end of 2014. So long journey. उसके बाद till 2006 ये साथ रहा, and इत्तेफाकन साथ रहा with Little Champ season 1, and of course then Aditya took over from season 2, और फिर that was 2006, and now back to 2014, back in Z, and back to talent, back to fabulous voices, back to amazing little children. सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आवाज़ें इतनी तैयार, लेकिन चेहरों में, हाव भाव में अब तक वो मासूमियत है. तो I think that's the beautiful thing about all these children, कि बस संगीत से ही जुड़े हैं ये जब से शायद पैदा हुए थे, और कोई चीज़ और कोई समझ बूझ उतना नहीं उनमें, which is a nice thing. तो हम वैसे ही चाहेंगे कि इन्हें जज करें, साथ साथ जज तो इन्हें करना, क्या जज करें इन्हें, ये शायद हमें जज ना करने इतना ही काफ़ी है, लेकिन इन्हें बस जो भी बच्चों को, मेरे भी 2 बच्चे हैं, सो यू नो लाइक टू गिव देम ऑल दैट, कीप दैट इनोसेंस, कि उस मासूमियत को, उस बालपन को अपने में जगाए रखें. कीप देम अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ क्रेजी सिचुएशंस, पॉलिटिक्स, और जितना हो सके उनको टाइमली लंच डिनर रहें ये, और नींद मिले. उन पर थोड़ा सा अत्याचार तो होता है इस शोज में, लेकिन कोशिश करूंगा जितना कम हो सके हम भी उन एज देयर पेरेंट्स अवे फ्रॉम होम कोशिश करेंगे बनने. थैंक यू शान. डेफिनेटली कोशिश ये रही कि जितने firstly thank you lovely kids for such a wonderful performance. Thank you lovely musician dadas for playing so wonderfully, and thank you Namit for such sweet words. I had been off for 2 years from recordings and stuff after I recorded for Savarlu, because I was busy shooting, which was a very new thing in my life. I cannot thank Z enough for bringing me back to the music scene like this. Aisa mahal, itne sare talents, and so much of dedication and passion from those kids that judge to main kar nahi sakti. But yes, I think I will get inspired again, and I'll get motivated again to do better. And I hope कि अगले जितने हफ्ते जाएंगे, महीने जाएंगे, हम बहुत मज़ा करेंगे, और we'll have lovely musical evenings for you as well as for us, all of us. Thank you. टैलेंट को देख के जो दोनों जजेस ने हाथ खड़े कर दिए, दोनों बोल रहे हैं हम जज नहीं करने वाले, तो आई थिंक अब स्टेज पे बुलाना पड़ेगा वन ऑफ इंडियाज मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड लव्ड सिंगर्स, द मच. Good evening, friends. I'm back as Mahaguru. Again, Z Saregama has succeeded in unearthing some of the most talented children we have. अभी आपने सबको सुना, they are amazing. हमने भी पहली बार सुना उनको. We haven't heard them before this. For the first time we were hearing them, and I'm really looking forward to the show now more than ever before. ये बच्चे जो होते हैं ना, I mean, in fact, I was offered the adult Saregama before this, but
I didn't take it on just because I wanted to do the children's one. बच्चों की positive energy, उनकी मासूमियत, उनकी जो and the immense talent that they have is something that I love to be surrounded by this kind of little children who sing so beautifully. I think some of my happiest moments have been while judging Saregama as a judge earlier and as a Mahaguru in the last season. और I think 2-3 साल हो गए ना पिछला सीजन, उसके बाद जो मुझे मिलता है वो यही पूछता है, अरे लिटिल चैम्प्स कब होगा, लिटिल चैम्प्स कब होगा. And I told them I've been waiting for it as enthusiastically as all of you. Needless to say, महागुरु हूँ मैं, तो मेरा जो डंडा है वो बच्चों के सर पर नहीं होगा, इन दोनों के सर पे होगा कि ये लोग क्या सिखा रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं. तो that's there and आप सबका सहयोग चाहिए, प्यार चाहिए. बच्चों को हम कोई जज नहीं करने वाले हैं, हम उन्हें सिर्फ we'll help them to blossom, we'll help them, उनको निखारना है. They are like rough stones which उनको तराशना है, उन्हें पॉलिश करके उनके अंदर की जो चमक है वो बाहर निकालनी है. बस यही है. और I'm really looking forward to it. Thank you. Thank you. उसका फर्स्ट सीजन मैंने किया था, उसमें भी शान थे. शान was hosting the show and me, Vapida and Abhijit, we three were the judges. और मुझे लगता है उसके बाद भी सीजन्स मैंने किए हैं. I've done the 3rd and 4th season and now this is the 5th season. But वो जो पहला सीजन है, वो जो पूरा माहौल है, वो they are very fond memories which I cherish all the time. और उस सीजन के जो बच्चे हैं वो आज तक they are in touch with me. They call, they come over when they are in Bombay, they take guidance. और ये करके उनको सिखा के उन्हें गाइड करके जो एक तरह का अलग तरह का एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो कि मतलब मैं गाती हूँ एज अ सिंगर, ये वो सब ठीक है, मगर सिखाने में जो हमने एक्सपीरियंस लिया है इंडस्ट्री से इतने सालों में, तो वो उनसे शेयर करने में, उन्हें बताने में कि इसको ऐसे करो एंड देन टू सी देम गेट बेटर एंड बेटर, इससे अच्छी कोई बात नहीं है. बच्चे जो होते हैं उनको मोल्ड करना बड़ा आसान होता है. एक बार आप एडल्ट हो गए, व्हेन यू हैव पास अ सर्टेन एज, you can't change or mold the contestant too much. लेकिन जब बच्चे होते हैं, because their vocal muscles are still being formed, so at that stage उनको सिखाना और उनको निखरते देखना अपनी आंखों के सामने, it's something so amazing and gives me immense satisfaction and happiness. Fantastic. Thank you, महागुरु जी. वैसे बिफोर वी स्टार्ट मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं, लेकिन हमारे जो प्रिय मेंबर्स ऑफ द मीडिया आए हैं, आई एम श्योर उनके पास भी ढेर सारे सवाल हैं. तो Q&A सेशन हम शुरू करते हैं. जो भी सवाल हैं आपके लिए, हमारे इस पूरे ऑडियंस में होस्टेसेस हैं जिनके पास माइक है, तो आप अगर हाथ ऊपर करें. क्या और कहना, लेकिन सवाल महागुरु अलका और शान और मोनाली से है. ये है कि हर शो देखने के बाद people will be jealous of the singers. अरे काश उस जगह में मैं होता. लेकिन इस शो में जजेस को देख हम लोगों को अपने ऊपर तरस आ रहा है. तो how exactly you plan to, because किसी ना किसी को आप रिजेक्ट करना ही है. बहुत मुश्किल काम आप कैसे हैंडल करने वाले? मुश्किल काम तो है भाई, बहुत मुश्किल काम है. और मगर अभी क्या है, देखो अभी सब अच्छा गा रहे हैं, बट विद इन a few episodes they are going to pick up further, मतलब they are going to get better and stronger. तो ये डिपेंड करता है कि कौन कितना स्ट्रांग हो जाता है पहले से, और कुछ जो है वो शायद some of them may not get as better as the others. So वहाँ पे we have to just wait and watch. कभी-कभी 2 अच्छे गाते हैं बच्चे, लेकिन एक बच्चा बहुत अच्छा गाने लगता है और एक बच्चा वहीं रहता है. हम तो सबको समान रूप से ही गाइड करेंगे, पर कौन कहाँ जाता है वो अपनी उसकी मेहनत और लगन पर है. So we'll take it, we'll see as it comes. कितने लोगों से आपने शॉर्टलिस्ट किया to final these 13 kids? We've been auditioning for almost 3 months now across the country. We've been in touch with music schools, teachers from all over, and it's been a long process. I think the last round that we did in Mumbai lasted for a week, and we started with about 100. Yeah, we started with about 100 in the last phase. Okay, and then we, with the help of our music coaches and teachers and the creative team,
brought it down to 12. So it's been a tough. We've added a tough filter to arrive at, needless to say, I think the talent is. जस्ट टू ऐड कि इनके फाइनलिस्ट जो 12 है उनके बाद भी उनकी ग्रूमिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है. तो हम अब शो से जुड़े हैं, लेकिन मुकेश जी हैं और जो जी के द म्यूजिकल टीम, दे ऑलरेडी बिन ट्रेनिंग देम. सो सम थिंग्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. दैट्स व्हाई आई थिंक सारेगामा पा की जो म्यूजिक, जो टैलेंट होती है, बिकॉज द फोकस इज सो मच ऑन म्यूजिक, नॉट द कोऑर्डिनेटेड क्लोथ्स और द लुक. द फोकस इज सो मच ऑन म्यूजिक दैट एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी, एंड लोगों को वाकई अच्छी म्यूजिक सुनने मिलती है. I think the team themselves also deserve an applause. Mukesh ji and all of his team.